is regarding motivation. Okay, we have a motivation lecture, but before that, I want all of you to tell about yourself. Then we'll start our method, and we'll learn so many things today. So please start from there onwards. Sandeepa, give your introduction. Please be fast. Your name and your qualification and name. Bas. You want to be? I want to be a doctor and serve the nation. Very good. Next, please. I'm Disha from STPG College. Disha, Shabash. Or your aim of life? Doctor, I achieved my ambition of becoming a doctor. Very good. Yes, Sanju. I'm Disha, I'm studying BSc from Maharajah University. I want to be a doctor. Next, please. I'm Garima. I'm pursuing second standard from Leopold School. I want to be an nurse. Very good. Still, there are 2 doctors and 2 IAS in my team. Next, please. I'm Shreema. I have been master's from this Maharajah University. My hobbies are best dancing. I want to be a successful computer research. Very good. Computer. Okay, you want to go in field in computer. Jeffrey Verma, I have done my master's in English from University University. I want to become a stand-up. Very good. Next, please. Yes, I'm Aarti. I have I'm May year. I have 5 years and 6 experience of teaching. I want to be a successful teacher. Very good. Next, please, Ghazal. I am Samira from I have secondary and my graduation Bachelor of Art from Public College. Very good. And your aim of life? Ghazal? Bank officer. Next, please. My name is Veronica. My aim in life is teaching. Okay, you want to be a successful pedagogue in your life. Yes, Anshul. And oh, first Kiran is there. Yes, Kiran. Guys, I am Kiran Gurdia. I have recently done my graduation from Maharajah Ganga Singh University. I came in life 5 years. Thank you. Very good. Next, please. Anshul, give your introduction, please. Hello, please. I am Anshul Kalada. MBA and MA from Maharajah Ganga Singh University. I have 7 years experience of teaching from 3 years. I want to be a successful pedagogue. Recent, I am working as a teacher in NLP Public School. Next. Hello, I am Darshni. I am MSc Mathematics and BA from Bhutan University, and I have been learning my services through home tuition. And my hobbies is dancing, learning motivational book. I want to be a successful pedagogue. Very good. Next, please, ma'am. I'm Mamta Sundani. I graduated arts from English University. I have also completed LLB from Kota University, and I want to be a successful pedagogue. Very good. Next, please. I'm Ekta Sharma. I'm graduating commerce from Maharajah Ganga Singh University with first division, and my aim is I want to be a manager in banking sector. Next, please. I'm Arshil Zamra, and I'm graduating in commerce, and my aim is I want to be a successful student. Okay. Next, please. Army officers. I am Pathak Rakesh. I belong to Army. Recently, I am posted in Sadwali Kent. I want to be an Army officer. Thanks. Next, please. Hello friends, I am Manoj Kumar. I have been serving my nation since 2004 as an army man. My hobbies are reading newspapers and watching TV. I want to be an army officer to better serve my nation. Yes. Next, please. I am Kailash Binoy. I done my BSc from Maharajah Ganga Singh University. And team. Kailash, क्या बनना चाहते हो आप? Medical विद्यार्थी. Okay. Next, please. I'm Jitendra. I have done my graduation from Raja Ganga Singh University. I want to make my career in pharmaceutical profession. Very good. Next, please. I am Prashi Jain from Shivanagar. I have passed my BTech from Jaipur. I want to see myself as a successful engineer. And the next. I'm Gurveer Singh. I am working as Vendor Enterprise Superintendent. Okay. Next, please. I'm Lakshman. I am pursuing senior secondary from Ajmer College. Okay, students. Lakshman, what is the aim of life? CA. Okay, very good. I hope all of you have covered. Now coming on our topic, today we have 3 topics to confirm. One is our positive attitude, second is our communication, and third is professionalism. Okay, students, last week we have gone through another topic. The coming week we will go with new topic. Every week we are making our lecture with different topics. We are covering our topics like tenses. We have covered our topic like dealing with people. We have covered our topic like body language. We have also covered our topic interviews, right? So this time we have a dynamic topic, a mixture of 3 things.
One is your positive attitude, another is your communication, and next is your professionalism. And in this, I'm going to tell you more than 7 successful stories. Because as our institute name is 7th Day Personality Development, so I'm going to tell you more than 7 successful stories of dynamic personalities of the world. And one more interesting thing, that you would be knowing these persons. आपको मैक्सिमम लोगों के बारे में पता होगा, उनके नेम्स आप ऑलरेडी जानते होंगे, तो it would be more interesting for you and you would definitely like it. See, I have given you one book, I have given you one interesting page. We have seen, all of you write your name upon it. Whenever you get any notes, write your name. And before we start our matter regarding positivity, I am going to tell you one fable, and this story correlates our own life also. See, this is a story which is very, very, very dynamic, and this story is of a water porter. You must be knowing what is the meaning of water porter. Porter means coolie. So आप समझ गए होंगे कि water porter कौन होता है. He carries one string, two strings, one rod, 2 port. His condition was something like this. He is supposed to carry water from well to the owner's house, because in well tap facilities are not available. So what happens? What they are to do? He is to carry water from well to the owner's house. क्योंकि owner जो है ना पैसा वो पानी लेने जाएगा well से, तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं और ये लोग उनके लिए काम करते हैं. So one day what happened? One of the port of this water porter got leaked. इसका एक port leak हो गया. Definitely water would ooze out, पानी बाहर आएगा. And when the water came out, this port said to his master, "You better change me. आप मुझे बदल दो." He stated, "My dear friend, I can easily change you, but you just look towards your side while we are returning." जब हम वापस आ रहे हैं उस तरह तुम सिर्फ देख लेना कि क्या होता है, रोड पे क्या हो रहा है. तो port said, "Okay, I'll see." And when the port see towards his side while they were returning, the port see there were beautiful flowers, roses, fruits and vegetables. Whereas on the other side the land was totally barren. Land क्या थी? Totally barren थी. और उसकी साइड में क्या था? There were beautiful flowers, roses, fruits, ये सब उगे हुए थे. तो डेफिनेटली वो शॉक हो गया. वो कहता, "माय डियर फ्रेंड," अपने वाटर पोर्टर को बोलता, "माय डियर फ्रेंड, ये मुझे क्या हो गया, ये क्या हो गया इतना, मेरी तरफ ही इतना कुछ उग रहा है, दूसरी तरफ बिल्कुल रोड बंजर है, ऐसा क्यों?" Then this water porter said, "My dear friend, I know you were having a haul. What I did, I placed few seeds towards your side and you unknowingly watered them." तुमने अनजाने में क्या किया? उन्हें पानी दे दिया. And now I am selling these fruits, these vegetables in market. I am gaining much more. मैं बहुत कमाता हूँ. अब बताओ मैं तुम्हें बदलूंगी नहीं बदलूंगी? तो वो चुप हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका बेनिफिट ले रहा था. Can anybody tell me in the class what is the moral we learned in this story? Anybody? I expect Raini to speak something, because Raini is my one of best student in group discussions and lectures giving. Please. Sir, if anyone taught us it, then also we should learn from them good things. Very good. That's a good point. That if mishappenings happens to us, you mean to say, then definitely we get a new lesson in our Yeah, life. new lesson. Anybody else? Ekta, you want to speak something? Highlight. What moral lesson we learn from this? No, you can't. Madam Aarti, you want to say something? कि हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? कुछ भी? We learn that happens like in our life. Yeah. Always good. Always good. Okay, you mean to say that whatever happens, happens for the good, right? When we were students, we were asked, what is the moral of the story? हमने बोला था, be positive. So it was not a blood group, जो मेरा सच्ची में है, मगर it was that be positive in life. हमने ये बोला था. Some students said that with one thing we can achieve 2 targets. Different. और एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, nothing is useless in the world. But the moral which was written in the book was quite different. The moral was, which we have read in the book was, it was, we all are having weaknesses. Do you agree, all of you? That really we have our weaknesses? Yes, we have weaknesses. So in the forward lines it was written, we all are having weaknesses. We should not degrade our weakness. हमें हर समय अपने आप को degrade नहीं करना चाहिए because of those weaknesses. Instead we should think, these are the weaknesses which are making our life more interesting. ये weaknesses ही है जो हमारी लाइफ को क्या बनाई जा रही है? Interesting बनाई जा रही है. See, let us take an example of a 4-year-old child. अचानक वो बच्चा MBA का नॉलेज ले ले. Would you go to school and college? No need. अब मुझे बताइए, when we were having a single Sunday, कितनी मुश्किल से हमारा टाइम पास होता था. तो बताइए, it is compulsory ना that we should develop our weaknesses. So never ever tell your weakness as a weakness. कभी भी weakness को weakness नहीं बोलना.
always tell your weakness, area of improvement. Even in interviews also, wherever you go to meet people, they ask you what are your weaknesses. हमने स्ट्रेंथ्स की बहुत बार बात करी हमारे पुराने लेक्चर्स में, वीकनेस की बात नहीं करी. तो इन वीकनेसेस अगर आपसे कोई पूछता है तो व्हाट यू शुड से सर माय एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट इज दिस एंड दिस. तो ही वुड इवन आस्क यू भाई एरिया, यस दिस इज माय एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, क्योंकि ये वीकनेस नहीं है, ये एरिया जिसके अंदर मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इंप्रूव करके दिखाना है. तो द मोरल ऑफ द स्टोरी वाज दिस. सो वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट वी ऑल आर हैविंग वीकनेसेस. सबसे पहले तो हम इस बात को जान लेते हैं अच्छे से कि हम सब में क्या है, weaknesses. Now I am going to tell you a story which is a further extension of this story. How it is कि हम सब में कमियां तो है. अब मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रहा हूं वो एक रियल स्टोरी है. My previous story was a fable, but this story is a real story. सच्ची की घटना है, एक रियल लाइफ की स्टोरी. The age of that person was 47. और शायद यहाँ पे 27 के भी बहुत कम बच्चे हैं. You all are in 20s maximum. So he was almost double to you. In that age, he was just sitting in the morning time. और मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं कि सुबह-सुबह हम क्या चीज पढ़ना पसंद करते हैं, न्यूज़पेपर. He was just sitting idle and he thought that why should I read newspaper? He took a newspaper and started reading it. In the newspaper, he was shocked while reading because in the newspaper it was written something different. And the difference was something like this: कि Lakshman is reading a newspaper or Kiran is reading a newspaper. And suddenly in the newspaper there is a picture of Lakshman और नीचे लिखा हो आप नहीं रहे. तो बताइए लक्ष्मण को कैसा लगेगा? सही है ना? ज्योति के लिए लिखा हो ज्योति नहीं रहे और ज्योति पढ़ रही है वो, और ज्योति की फोटो भी दी हुई ऐसे करके, ज्योति स्माइल कर रही है और अलविदा कहा हुआ है. तो बताइए मुझे ज्योति को कैसा लगेगा? शॉक्ड, एग्री? So she swallowed hard when she saw that picture and she just that person was him. So he just ran to his parents and asked them to touch me. फटाफट अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स को बोला मुझे टच करो. फटाफट उन्होंने हाथ लगाया तो उसको रियलाइज हुआ मैं जिंदा तो हूँ. उसको इस बात की खुशी हुई that I am alive. उसको कहीं लग रहा था कि मेरी आत्मा ही पढ़ रही है न्यूज़पेपर, मैं चला गया हूँ. In the newspaper, when he saw that happening in the newspaper, he started getting angry because human nature, गलती तो हुई है किसी ना किसी से, तो उसने क्या किया, उसको गुस्सा आना शुरू हुआ. In the anger, what he started doing, सबसे पहले उसने फोन किसको किया होगा? Very good, editor, publisher, है ना? इसी को ही करेगा न्यूज़पेपर वाले को. तो he rang the publisher and he said, "What you did this? I am alive यार. What you did?" He said, "Sorry sir, वो शर्मा की जगह वर्मा की जगह दिंगड़ा की जगह जो भी है हमसे गलती हो गई और हमें लगा कि आप इस दुनिया से चले गए." उसको बड़ा दुख हुआ. तो उसने कहा देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम फोन काटो. और उसने फोन काटा. उसने कहा बड़ा आदमी था, चलो माफ किया, छोड़ो, छोटा पर्सन है, क्या आपका कोई गलती हुई है, छोड़ो. As soon as when he sat relaxed, suddenly the phone again rang and the phone was of publisher. अब की बार फोन वापस से किसका था? Publisher का. And he stated one more thing. The thing was, he said, "Sir, one more mistake I did." मुझसे एक और गलती हो गई. वो कहता मुझे आगे से गुस्सा आ रहा है. And you made one more mistake. What is this? वो कहता sir, one simple mistake I made. The mistake is what happened when we came to know that you are no more. What we did, we reached everybody's home in the town. हम शहर के अलग-अलग लोगों में जाकर मिल आए. And we conveyed them that you are no more. And what they said after that, we wrote in the newspaper. Obituary बोलते हैं इसको. In the obituary. And we wrote what people said about you. लोग देते हैं अपनी सांत्वना में, वो हो गए क्या, बहुत ही ये थे वो थे, जो भी लोग कहते हैं. So he said, "Now I am getting more angry. Cut the phone." And somehow he left the phone. And suddenly his mind clicked that why shouldn't I read what people write for me? And he took the paper again and he started reading that लोग मेरे बारे में at least कहते क्या है? I should know because one day I'm supposed to go. So what he said that I should read and see what people thinking are towards me. And in the newspaper it was written, the first line was of a person, one ordinary person, monster died. इसका मतलब होता है राक्षस मारा गया. उसको बड़ा दुख हुआ कि यार मरने के बाद भी लोग मेरे बारे में इतना बुरा कह रहे हैं. उसने अगली लाइन पढ़ी, the next person's views. He again stated, devil died. और दुख हुआ. थर्ड पर्सन ने कहा blood sucker died.
He got so much tense. यार ये लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? और लोगों ने बहुत कुछ लिखा था, बेकार आदमी था, पूरा था, मर गया, बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा. He got shocked यार कि यार मैं इतनी एज के बाद गया हूँ धरती से और मैंने इतना अच्छा अच्छे काम किया अपनी तरफ से और people are saying about me like this. So he thought कि ऐसा हुआ क्यों? Actually students, he was a scientist and he invented dynamite. उसने डायनामाइट इन्वेंट किया था for the benefit of the society. उसने सोसाइटी के बेनिफिट के लिए डायनामाइट इन्वेंट किया. अब उसने डायनामाइट क्यों इन्वेंट किया? ताकि माउंटेन्स का रास्ता निकाला जाए, राइट? कोल माइंस निकाली जाए, गोल्ड माइंस निकाली जाए. मगर टेररिस्ट ने उसका क्या किया? मिसयूज किया. एंड टेररिस्ट स्टार्टिंग थ्रोइंग ऑन ऑर्डिनरी पब्लिक और उससे लोग भी मरने लगे. अच्छा फॉर्मूला तो उसने दिया था डायनामाइट का, तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन बनता है इस बात से. तो गलती तो उससे थी. उसको महसूस हुआ that really I made a mistake. His age was at that time 47. उस एज के अंदर अगर कोई आदमी अपना ट्रैक चेंज करना चाहे तो कर सकता है क्या? बहुत मुश्किल होता है. आप जानते हैं 20, 25, 30 तक जो आदमी बन जाता है वो बना रहता है. He tries to develop only that skill instead of changing the track. अगर कोई करता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है. 47 इयर्स की एज के अंदर वो खड़ा हुआ पर्सन और उसने ओथ ली. He took an oath. और उसने ओथ लेकर ये कहा कि when really I will go from this earth, जब सच में मैं इस दुनिया से जाऊंगा, I will do as if that people would unable to say anything wrong about me. मैं जरूर ऐसा कुछ करके जाऊंगा. And students, he started working for peace. And he worked so well, country to country, different countries, that today you must be knowing there is an award for peace. Can anybody tell me what is the name of that award? Nobel Prize. And the name of that person was Alfred Nobel. Maximum people knows that Alfred Nobel was a person who is known because of his prize, because of his nobility, because of his peace work. But rarely people knows that he was the only scientist who invented dynamite. So this is a story which I want to tell you after this so that it would get correlated with you. My next topic, more important, is your communication and your professionalism. There are different works, different parts of that. In that story is I am going to correlate some ladies. So I am going to ask one question from my housewives that my dear housewives, all of you tell me that there is a kitty party. Who organized those kitty parties? Ladies, gents or children? Ladies, agree? What did you do in that party? If any of you is a part of that, Aarti must be, even Madam must be, even Raini must be, so Ashul must be. So what you are doing in that party? Can anybody tell me? Sandeepa or Ashit, आप लोग तो करते नहीं होंगे party. So definitely that their part. What you are doing in that party? थोड़ा सा hint दे दो. Dancing, playing and games and all these things. So suddenly what happened? One of the ladies' mind worked. अचानक आरती मैडम खितान मैडम का कोई माइंड चला. ऐसी कोई लेडी थी डायनेमिक, उनका माइंड चला that we are wasting our time in kitty parties. So why shouldn't we do something different? हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जिसका हमें बेनिफिट हो, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ डांसिंग, प्लेइंग एंड ईटिंग एंड एंजॉयिंग. तो what they said that what we can do, हम क्या कर सकते हैं? Then they thought that we can search our weaknesses and work on those weaknesses. Then they thought कि हम कैसे अपनी weaknesses के ऊपर work करें. Then they made a plan. उन्होंने plan बनाया कि हम लोग एक काम करते हैं. We reached our homes and asked the person who is staying with us for 24 hours, must be their husbands. So we'll ask from them our weaknesses. And whatever weaknesses they will tell, we will come out here and we will try to solve them, discuss it, and we will resolve those weaknesses. That's a nice part, really nice part. So they reached their homes and reached their husbands, and one of the lady, her husband was a highly professional man. So my topic is professionalism only. Her husband was a highly professional man. My question from all of you, what is the meaning of professional? कोई बता सकता है मुझे? What is the meaning of professional? Well educated. आपकी definition में professional सुना word आपने? Sincere person is professional. Yes. Punctual person is professional. Yes. Girls over there. Rashid Sandeepa. Ujjwal. Perfect. Okay. My definition is professional is the one who knows his job. जो अपने कार्य को जानता है, वो professional. If you are at home, you are playing with kids, your kids
You are treating your kids in different manner, definitely. As you are treating your colleagues in your office, as you are treating, as I am treating my students in my class. So whenever we are in which situation, whichever situation is given to us, and if we behave that way, that is our professionalism. So when that husband, he was a highly professional man, I am saying, first of all, he got shocked when wife asked such a question. भाई वाइफ ने अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो ये शॉकिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि रोज वाइफ क्या करती है, उसकी वीकनेसेस बताती थी, और आज वाइफ ने क्या पूछा, अपनी वीकनेस। आपके साथ हुआ मनोज कभी कि आपकी वाइफ ने आपको कहा मुझे मेरी 10 वीकनेस बताओ प्राणनाथ? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा और आने वाले 10 सालों में भी नहीं होने वाला, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि ये एक स्टोरी है। तो इन दैट स्टोरी व्हाट हैपेंड, दैट वाइफ आस्क्ड दैट हस्बैंड प्लीज टेल मी माय 7 वीकनेसेस और 10 वीकनेसेस। तो हस्बैंड सेड, हस्बैंड वाला हाईली प्रोफेशनल है, पहले तो शॉक्ड हो गया, अचानक swallowed hard, और तो उसने ऐसा अज्यूम किया कि आज मेरी वाइफ को ये क्या हो गया, मेरी वाइफ जो रोज मेरी वीकनेसेस बताती थी, टुडे शी इज टेलिंग अबाउट हर ओन वीकनेस, आस्किंग अबाउट वीकनेस, व्हाट इज दिस? तो उसने फटाफट बताई नहीं, इट डिडंट स्टेट एनीथिंग, वो कहता है राइट इट फॉर यू। वाइफ और खुश हो गई, क्योंकि एक तो बताया जाए और एक लिख के दिया जाए, दोनों में डिफरेंस है, लिखा हुआ पूरी लाइफ चलता है। तो वाइफ really got happy, she said very nice यार, please write it for me. Wife's husband again got shocked, यार ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो husband said tomorrow I'll write for you. तो wife said okay no problem, I'll wait for 1 day. What is this? And husband started waiting. अब husband ने जब वेट करना शुरू किया, wife ने जब वेट किया, तो definitely वो वेट कर रही थी कल का। In the morning the schedule was, husband has to get up early in the morning, he has to catch a train and leave. What about wife? She wakes up at after 2 hours, almost 7 o'clock, and then do all the household works. This was the schedule of a home. When the wife wakes up, there was a nice bouquet with 7 roses and a letter. Wife got very happy. Why she get happy? She must be waiting for her weaknesses. तो उसको लगा कि इस लेटर के अंदर क्या लिखा होगा, जरूर कमियां लिखी हो, right? When she asked about that, when she thought that weaknesses are there, she was just about to touch that paper and she started reading it. In the letter it was written, my dear wife, I love you a lot. You asked me 7 weaknesses. I believe you don't have a single one. मेरे according तुम में एक भी weakness नहीं है. You are a perfect lady according to me. In my eyes you are perfect. You don't have a single weakness. अब बताओ वाइफ को कैसा लग रहा था? वाइफ को बहुत अच्छा लग रहा था। And below it was written, since you asked me 7 weaknesses and I am unable to give you because you don't have anyone, I am placing 7 roses for you. मैं तुम्हें क्या देके जा रहा हूँ? 7 roses. तो ये 7 roses तुम्हारे लिए। Definitely in the evening when husband came in the evening time, who would be waiting for the husband with tears in her eyes? Wife. Wife embraced him, loved him, hugged him, and said, really husband, I don't have any weakness. Husband said, yes, I told you that you don't have a single weakness. Wife told, oh my dear, I thought that you must be giving me more weaknesses. He said, no my dear, you don't have a single weakness. Only that I was thinking in the train that you are an educated lady and our kids are going outside for tuitions and spending almost 5,000 rupees per month. Why shouldn't you study them? You teach them. Wife said, oh, it's a good idea. ये तो बहुत अच्छा idea है. I should teach my kids myself. And they assumed, and wife said, okay, I'm ready, no problem. I will teach my kids from tomorrow onwards, and we will save how many rupees? 5,000. And husband said, really? I told her, you don't have a single weakness. Husband said, one more thing, my dear wife. One thing I want to tell you, that you are spending little more amount in kitty parties. Every month you are spending 2,500 rupees. I believe it is little costly. My wife said, okay, I promise you, from tomorrow onwards, from next month onwards, whenever there will be a party, whenever there will be a kitty party, there will be a fixed amount of 800 rupees from me, not more than that. हर महीने मैं 2,500 से कितने पे आ जाऊंगी? 800 पे। और मैं प्रॉमिस करती हूँ 800 रुपीज से ज्यादा इन्वेस्ट में अमाउंट नहीं करूंगी। हस्बैंड कहता मैंने पहले ही कहा था, यू डोंट हैव अ सिंगल वीकनेस, तुम में एक भी वीकनेस नहीं है। हस्बैंड कहता बस एक बात हो रही है, मैं सुबह उठता हूँ ना तो मुझे चाय बनानी पड़ती है, तो आई हैव टू मेक टी माई सेल्फ, सो इज इट पॉसिबल? आई सेड प्लीज स्टॉप, टुमारो ऑनवर्ड्स I will prepare tea for you.
and I promise not a single day I'll miss. My husband said, really my dear wife, you are really a darling wife, you don't have a single weakness. मैंने पहले ही कहा था तुम में एक भी कमी नहीं है. और ये स्टोरी थी एक प्रोफेशनल घर की. इट इज a story of a professional home. अब बात आती है हमारे घरों में क्या हुआ, क्योंकि देयर वाज अ किटी पार्टी एंड किटी पार्टी के अंदर काफी लेडीज थी और मैंने आपको स्टोरी बताई है सिर्फ एक लेडी की जिनके हस्बैंड कौन थे, हाईली प्रोफेशनल थे. और नॉट व्हाट अबाउट दोस अदर लेडीज व्हेन दे रीच देयर होम्स दे आस्क देयर हस्बैंड्स, माय डियर हस्बैंड प्लीज टेल मी 7 वीकनेसेस 10 वीकनेसेस. तो उनके हस्बैंड जो प्रोफेशनल नहीं थे, देयर वर्ड्स वर भगवान 7 क्या पूछ दिए 70 पूछ फिर शुरू करूं. तो उससे क्या हुआ, एक भी वीकनेस इंप्रूव नहीं हुई. नॉट अ सिंगल weakness get improved. So which was the best way? The best way was professionalism. Got it? So there are different modes to learn the things. As I told you that we are going to learn professionalism, we are going to learn attitude, we are going to learn communication. Communication is a quite important part. When you are sender, that the receiver, you must be knowing there is a medium. Sometimes it may be a wire, sometimes it may be air. Different things you are reading in your books in communication. But the thing which I want to teach you is very different. The thing which I want to teach you is again based on a story, because as I told you, I am going to tell you some interesting things. It is a story of an America. There was an arrogant doctor, very egoist. He don't want to talk with illiterates. He called all the drunkards of the city in a hall and told them, "Hey, all you came?" They told, "Yes, sir, we came." They all are drunkards and uneducated and illiterate persons, but they were big drunkards. तो डॉक्टर का फर्ज था कि उन लोगों को ये बताए कि ये जो शराब पी रहे हैं ये बुरी चीज है और ये आपको बहुत हानि पहुंचाती है और आपके शरीर को बहुत खराब करती है. बट ही वाज अ एरोगेंट पर्सन, तो उसने उनसे एक भी बात नहीं करी, एक बार भी उनसे बोले नहीं. उन्होंने कहा मैं एक हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, ये क्या थर्ड क्लास लोग हैं, ये क्या मेरी बात, मैं इनसे क्यों बात करूँ. बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंस उसने क्या किया, वो आया स्टेज पे और कहता हे ऑल ऑफ यू कम. वो 1000 लोग खड़े थे, जितने भी खड़े थे, उनको बोला ओके कम. दे सेड यस सर वी केम, हम लोग, आप क्या बताने आए हैं. वो तो एरोगेंट था, उसने बोला तो नहीं कुछ. He took 2 jars. In one jar he was having an alcohol, another jar he was having water. He placed few earthworms inside that jar. In both the jars, what he placed? Earthworms. The earthworms which were placed in water, they swam beautifully. Whereas the earthworm which was placed in alcohol, they get dispersed. Blood oozes and they get even killed, I can say, or the water become reddish and almost died. And what about the condition of the another with their water? They swam beautifully and still it didn't speak anything. और पता है क्या बोला, गुस्से मतलब एरोगेंस तो था ही, कहता समझ गए. वो आगे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो समझ गए. उन्होंने भी क्या बोला, समझ गए. और वो खड़ा हो गया, ठीक है जाओ. अब वो जाने लगे. जब वो जाने लगे तो many people were having a smile on their face. वो बड़े खुश थे, डॉक्टर को यूं देख के जा रहे थे, मतलब एक और पिएंगे आज तो डॉक्टर को लगा यार मैं इनको क्या समझाने आया था और ये क्या समझ गए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है. डॉक्टर तो रुको रुको रुको, आप लोग क्या समझे. सर समझ गए. सर क्या समझे, क्या कहते. सर समझ गए कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और ये बहुत अच्छी चीज है. तो बताओ, दैट वाज अ miscommunication of a doctor. So communication matters a lot. The attire matters when you are going to meet some dynamic personality and you are going to impress that person, whether it is interview, whether you are going to meet any principal or for your own personal work. Your attire matters, even whether you are shaved or not. और आप, मैंने एक मूवी देखी थी स्टूडेंट्स, in that it was stated that difference between successful and unsuccessful people. There are so many things which unsuccessful people don't like. डिफरेंस बता रहा हूं आपको छोटा सा, बड़े ध्यान से समझना. अनसक्सेसफुल पीपल डोंट लाइक दोस थिंग्स. सुबह जल्दी उठना उनको पसंद नहीं है. 1 घंटा जल्दी उठ के अपने पूरे दिन के काम को जल्दी कवर अप कर लेना उनको पसंद नहीं है. और मालूम वो क्या करते हैं, वो उस काम को नहीं करते क्योंकि उनको पसंद नहीं है. उनको रोज शेव करना पसंद नहीं है, उनको रोज कभी कभी तो नहाना ही पसंद नहीं है, और कभी कभी तो रोज काम पे जाना भी उनको लगता है रोज क्या जाना यार, रोज क्लास क्या अटेंड करनी, रोज क्या ऑफिस जाना, एक दिन छुट्टी करते. तो वो रोज जाना भी पसंद नहीं करते और वो काम नहीं भी करते.
क्योंकि उनको पसंद नहीं है। और जो सक्सेसफुल लोग हैं एक्चुअली में उनको भी वो काम पसंद नहीं है। रियल बात है, दिस इज अ रियल थिंग। उनको भी वो काम पसंद नहीं है, रोज सुबह जल्दी उठना उनको भी अच्छा नहीं लगता, मगर वो क्या करते हैं, वो उठते। सक्सेसफुल लोगों को शेव करना रोज अच्छा नहीं लगता सच्ची में, एज आई एम शेविंग बिकॉज इट इज माय प्रोफेशन। सो कभी कभी ऐसा लगता भी है दैट डेली आई एम सपोज्ड टू, कोई संडे नहीं, कुछ नहीं, नथिंग रॉन्ग, करना है तो करना है, बट करना पड़ता है। तो अगर आप करते रहोगे उस काम को तो तब तक तो आप सक्सेसफुल हो। अगर मैं सोच लूं नहीं 2 दिन शेव नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे ले हम टीचर से मिलने गए थे, टीचर खुद तो शेव नहीं था, वो हमें क्या सिखाएगा यार, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, राइट? तो सक्सेसफुल लोगों और अनसक्सेसफुल लोगों में क्या फर्क है? अनसक्सेसफुल पीपल डोंट लाइक द थिंग्स व्हिच दे डोंट लाइक, द थिंग्स दे डोंट डू एट ऑल, एंड द सक्सेसफुल पीपल व्हिच दे डोंट लाइक द थिंग्स दे डू दोस थिंग्स, whether they like or don't that doesn't matter at all। वो उसको पसंद करें चाहे ना करें, मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। अब बात आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात पे स्टूडेंट्स हमारी, कि whenever we are working, we are laboring hard, is God there with us? क्या भगवान सच्ची में हमारे साथ होता है? There was a person, he was sitting in his home, suddenly flood came। क्या होता है flood? Very good. Flood came, and what happened when the flood water was rushes out? Suddenly a jeep came, and in the jeep few people were there। और उस आदमी को क्या बोले, आओ हमारे साथ, पीछे क्या आ रही है, बाढ़ आ रही है, फ्लड ज्यादा तेज आ रही है, आप हमारे साथ आओ, हम आपको ले जाते और सेव कर लेते। वो पर्सन मालूम क्या बोला? He said no, I am remembering God, राम राम कर रहा हूँ, राम will come help me, don't, आप जाओ, ठीक है। Suddenly water rises, he reached the top of his floor। अब क्या आई, जीप तो आ नहीं सकती क्योंकि पानी ज्यादा आ गया, क्या आएगी, बोट आएगी। बोट came, few people were there and said, अपना हाथ दो, हम आपको बचा के ले जाते हैं। वो said no, राम 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 कर रहा हूँ, भगवान बचा देगा। Now the water again rises, और वो अपने टॉप सिस्टर्न पे खड़ा हो गया पानी की टंकी। जब वो सिस्टर्न पे खड़ा था, हेलीकॉप्टर came and told him give your hand, और उसने क्या बोला, नहीं, राम राम कर रहा हूं, गॉड विल सेव मी। अब नो डाउट राम कहने से फायदा तो बहुत है, मगर अभी उस व्यक्ति ने वो नहीं देखा जो राम उसको देना चाहते थे। अब उसको तैरना नहीं आता था, he doesn't know how to swim, so what happened? He drowned, died, reached the boat, और वहां जाके पता है क्या बोला सबसे पहले? कहता भगवान का ऑफिस किधर है? कहता बस इधर मुड़ के ही है। कहता मिल के आता हूँ। बोर्ड के पास गया, कहता मैं कम इन सर। बोर्ड कहते आइए, बैठे। कहते गॉड एक्चुअली मैं तुम्हें याद कर रहा था यार, आप आए नहीं। कहते गॉड कहते एक बात, वो जो जीप आई थी, वो जो हेलीकॉप्टर आया था, और वो जो बोट आई थी, ये किससे भेजे थे? अब मैं खुद लेने आऊँ तेरे को कि भाई चल, और मैं अगर लेने भी आता तो मैं कहाँ लेके जाता? मैं अपने पास ही ले आता। तो ज्यादा अच्छा क्या था? So when options are there and we are not adopting them, that's the main drawback of our life। हमें पता होता है कि ये काम करने से मुझे फायदा है, फिर भी हम अगर उसे नहीं करेंगे तो क्या होगा? We know very well। और there is no criteria whether we are small, whether we are thin, whether we are fat। Lakshman is little thin, okay? Both my army officer having good body, even my ladies are very dynamic, but these things doesn't matter at all। आप लंबे हो, आप छोटे हो, आप मोटे हो, doesn't matter at all। एक छोटा सा बच्चा was having hardly 7 years old, he reached a balloon vendor and said balloon vendor, कौन सा बैलून भैया ऊपर जाएगा ना वो मुझे दे दो, ये रेड वाला ज्यादा ऊपर जाएगा तो ये दे दो, और ग्रीन वाला जाएगा तो ग्रीन दे दो। तो बैलून वेंडर के वर्ड्स क्या थे? माय डियर फ्रेंड, दिस कलर डजंट मैटर, द थिंग व्हिच मैटर्स इज द हीलियम गैस व्हिच इज इनसाइड दिस बैलून। ब्लैक बैलून हो चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, ये मैटर कभी भी नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा कि इसमें गैसेस कितनी है, इसमें हीलियम या हाइड्रोजन गैस कितनी है, वो चीज मैटर करेगी कि लाइफ में ये बैलून कितना ऊपर जाएगा। द सेम केस विद अस, when we think we are small we can't, no, not at all। नेपोलियन बोनापार्ट की हाइट आप लोग जानते हैं बच्चों? नाम सुने आपने? He was very short-headed person, still he won the world, he was a great warrior। और उसने एक बात भी कही थी
इम्पॉसिबल इज नॉट अ वर्ड इन माय डिक्शनरी, क्योंकि इम्पॉसिबल को अगर हम ब्रेक करके देखें तो बनता है आई एम पॉसिबल। तो जब इतना कुछ होता है तो हम क्यों नहीं अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बना पाते? यू मस्ट बी नोइंग अ डायनेमिक पर्सन आइंस्टीन, जिसने अपना ब्रेन सबसे ज्यादा यूज किया था, वो भी हमेशा ह्यूमरस लाइफ में रहता था, आपको पता है, क्योंकि ह्यूमर रहने का भी एक बहुत अच्छा अंदाज है। He was going with his driver in the country to deliver lectures। उसका एक ड्राइवर था उसके साथ जो 20 सालों से उसके साथ था। और मुझे बताइए कि आप में से अगर आज मैं अगर किसी का भी नाम लूं, मैं लेता हूं गजल का, कि गजल अगर मेरे साथ 20 साल से हर मेरा सेमिनार अटेंड करे तो क्या गजल मेरा लेक्चर नहीं देने लग जाएगी? पता लग जाएगा ना गजल को क्या देते हैं सर, क्या क्या बातें बतानी है भाई, वो दे सकती है। तो ये आइंस्टीन था, ये इतना इंटेलिजेंट आदमी था। जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं ना, ये रियल स्टोरी बता रहा हूं स्टूडेंट्स। आइंस्टीन आप जानते तो है ना, है ना, E equal to mc square, रिलेटिविटी का फॉर्मूला भी दिया था, राइट? तो व्हाट हैपेंड, ही टोल्ड हिज ड्राइवर, यार तुम मेरे साथ 20 सालों से हो, अपनी नई कंट्री है, पहले व्हाट्सएप तो होते नहीं थे भाई, फोन ही नहीं था, तो जानते तो थे ही नहीं, नाम से जानेंगे भाई, हाँ भाई जब आप आ जाओगे तभी पता लगेगा भाई आप आए हो। तो ही सेड हिज ड्राइवर, यार तुम मेरे साथ 20 सालों से हो, मैं बहुत थक गया हूँ आज, मेरे से 3 घंटे का लेक्चर नहीं दिया जाएगा, तुम ऐसा करो अल्बर्ट आइंस्टीन बन जाओ और मैं क्या बन जाता हूँ, ड्राइवर बन जाता हूँ। और ये रियल कहानी उन्होंने अपनी बातों में लिखा भी है, अपने वर्ड्स में, जब उन्होंने अपने बारे में बताया। तो हुआ ऐसा कि सच में वो ड्राइवर तैयार हो गया और वो आइंस्टीन बन गया, और हमारे जो आइंस्टीन वो क्या बन गए, ड्राइवर बन गए। एंड दे रीच्ड वन प्लेस, और वहां पर जाकर वो ड्राइवर को बोले कि हाँ आइए आइंस्टीन जी। अब वो जो असली में जो आइंस्टीन था उसको मौका मिल गया रेस्ट करने का, वो अपना स्टूल लेकर साइड में बैठ गया और सो गया, आराम से रिलैक्स करके। अब 3 घंटे तक कौन बोला, क्या बनकर, उसने बहुत अच्छा लेक्चर किया, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बट वन मेजर प्रॉब्लम केम बिटवीन। एक नॉटी गर्ल, मैं कोई भी कह दूं, गरिमा जैसी एक नॉटी गर्ल ने क्या किया, एक क्वेश्चन पूछ लिया। अब बताइए लेक्चर तक तो सीमित था, मगर अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब एकदम से कैसे ड्राइवर दे सकता है, और वो क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन था, मतलब ड्राइवर को तो बिल्कुल भी नहीं आता था। मगर ऐसा कहा गया that because this driver was staying with this Einstein, उसके साथ रहते रहते what happened, his wit got increased, उसकी wit पावर इतनी improve हो गई थी कि जब ये हार्ड क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, तो मालूम ड्राइवर ने क्या कहा, बोलो इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन, इवन माय ड्राइवर कैन आंसर, वुड यू लाइक टू ट्राई? और उसने मिनट में जवाब दिया, और इतना अच्छा जवाब दिया कि इतनी क्लैप्स हुई कि यार इतने हार्ड क्वेश्चन को उसका ड्राइवर ने इतने मिनट में दे दिया और इतना बढ़िया आंसर दिया। तो प्लीज डोंट आस्क सच सिली क्वेश्चंस, इवन ये तो मैं ड्राइवर दे देंगे, और वो बहुत अच्छा आंसर दिया गया। अब बताइए मेरी बात कि कितनी विट पावर कितनी इंप्रूव करी, तो ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमर। नेवर नेवर एवर गेट fear of failures, we should not have a fear of failures। अगर कोई मुझे कहता है कि सर आई fear of failures, तो मैं आपको एक एज की तारीख सुनाता हूँ। कितनी एज है लक्ष्मण तुम्हारी? 17। आपकी 26। गर्ल्स से नहीं पूछते भी एज। हाँ जी 24। हाँ जी वेरी गुड। मुझे इस एज का लड़का चाहिए जो 21 और 22 का हो, वो है दीपांशु। तो देखिए हुआ ऐसा कि देयर वाज अ पर्सन, हिज एज वाज 21। उसकी एज कितनी थी स्टूडेंट्स? 21। उसकी एज थी 21 और उसने काम शुरू किया, और काम का स्टैंडर्ड आप समझ गए होंगे क्योंकि उसके फादर खुद कॉबलर थे, तो आप समझ गए होंगे कि वो कितना स्टैंडर्ड का काम कर सकता है। ही स्टार्टेड वर्किंग, उसने काम बहुत अच्छा किया, मगर उसने काम का स्टैंडर्ड देखा होगा आपने कितना रहा, और वो काम फ्लॉप हो गया। 22 साल की उम्र में फिर उसने काम किया, मगर वो काम फ्लॉप हो गया। हम अगर 2 बार लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाएं तो क्या करते हैं लोग बहुत बुरा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आप सोच भी नहीं सकते। वन ऑफ माय स्टूडेंट, आई एम रियली सैड अबाउट हिम, कि वो मेरा स्टूडेंट होता था किसी टाइम में, और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो अनसक्सेसफुल रहा कुछ एग्जाम्स में और उसने सुसाइड कर लिया। मुझे बहुत दुख हुआ, स्टिल आई एम सॉरी फॉर हिम। नो डाउट बाद में उसकी सिस्टर मुझसे पढ़ने आई, सब कुछ हुआ, उसकी सिस्टर बहुत इंटेलिजेंट भी है, मगर मुझे भी कुछ लड़के के दुख है कि ही इज नो मोर विद अस। अब जब 2 बार वो फेल हुआ तो उसने हार नहीं मानी। उसके साथ फिर एक प्रॉब्लम हुई। 26 की एज के अंदर उसकी फेंसी डेथ हुई। करीबन 20 एज के अंदर उसने एक इलेक्शन लड़ा जिसका नाम था लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, और वो इलेक्शन हार गया। 31 की एज में वो फिर खड़ा हो गया किसी इलेक्शन में, कांग्रेशनल नाम था, वो फिर आ गया, दुखी हो रहा था। 30 एज के अंदर वो सेनेटोरियल नाम से इलेक्शन लड़ा, हार गया। 42 में फिर आ गया। अब बताइए 40 साल
50% जिंदगी गई उसकी। 47 इयर्स की एज के अंदर उसने वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट को लूज किया, यानी फिर से वो हार गया। बट at the age of 52 he became the president of USA. Can anybody tell me the name of that person? Abraham Lincoln, not Obama. His name was Abraham Lincoln. तो ऐसे लोग भी बैठे दुनिया में। तो never ever worry about such small things. हम अपने मैटर को शुरू करते हैं। निकालिए बुक्स। Let's start our matter. My book name is Who Moved My Cheese. ये बहुत अच्छा मैटर है, डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने लिखा है और बहुत डायनेमिक राइटर है जिन्होंने एक और किताब भी लिखी है। द नेम ऑफ दैट बुक इज द 1 मिनट मैनेजर। ये भी बुक मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है ये। बट दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वे टू डील विद चेंज इन योर वर्क एंड इन योर लाइफ। ये जो बुक है ये आपकी लाइफ के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगी और आपकी लाइफ को एक डायनेमिक लाइफ बना देगी। तो लेट्स सी कि ये हमारी लाइफ को कैसे इंटरेस्टिंग बनाती है। देयर आर 4 कैरेक्टर्स। इस स्टोरी, एक स्टोरी स्टूडेंट्स आपको पहले सुननी होगी। इस स्टोरी के अंदर क्या है, 4 कैरेक्टर्स हैं। 2 तो छोटे छोटे चूहे हैं, उनके साइज देख लो इतने इतने हैं, और 2 लिटिल पीपल हैं, उनके भी साइज इतने इतने। दे ऑल आर एंजॉयिंग चीज। वो सब क्या कर रहे हैं, चीज एंजॉय कर रहे हैं और चीज खा रहे हैं। सडनली व्हाट हैपन, आपको मालूम है दैट माइस जो होती है इनकी जो सेंसिटिव पावर होती है थोड़ी सी तेज होती है, इनको जल्दी पता लग जाता है क्या हो रहा है। और हुआ ऐसा, जब इनको पता लगा कि हम जो चीज खा रहे हैं ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये उस चीज को छोड़ के चले गए। इन दोनों माइस का नाम बताओ। स्निफ एंड स्करी। इनका नाम क्या है, स्निफ एंड स्करी। यू मस्ट बी नोइंग हियर इट्स रिटन स्निफ एंड स्करी। एंड 2 लिटिल पीपल, द नेम ऑफ देम वर हैम एंड हॉ। आप ध्यान से देखो कि जो हैम है उसके लिए नेगेटिव लिखा हुआ है और जो हो है उसके लिए क्या लिखा है, पॉजिटिव। यानी कि हैम एक नकारात्मक सोच का व्यक्ति और हॉ एक पॉजिटिव सोच का व्यक्ति। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नेगेटिव सोच का व्यक्ति कैसा लगता है और पॉजिटिव सोच का व्यक्ति कैसा लगता है? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? एनीबॉडी? नेगेटिव सोच वाला हमेशा ये कहेगा कि ना। और पॉजिटिव सोच का व्यक्ति ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, विश्वास नहीं आता। वेरी गुड, यू ट्राइड योर बेस्ट स्टूडेंट्स। देयर वाज अ पर्सन, ही वाज इन अ विलेज। वो पर्सन जिस विलेज में रहता था, देयर वर ओनली फिशरमैन। 10,000 वाज द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज और वो सब क्या करते थे, देयर वर फिशरमैन। देयर वर्क वाज दैट। सो यू मस्ट नोन कि उस वर्क के अंदर वो कितना ही कमाते थे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो पर्सन था जो इस विलेज में रहता था, व्हाट ही डिड, ही मेड वन बोट। दैट बोट ही नेम्ड एट दैट दिस वर्क्स विद की, चाबी से चलने वाली बोट। एक्चुअली आगे जाकर वो बोट का नाम बना स्टीम बोट और वही उसका इन्वेंटर था। उस आदमी का नाम आगे जाके आपको मालूम चलेगा कि उसका नाम था रॉबर्ट फल्टन। बहुत डायनेमिक आदमी था। उस आदमी ने जब अपने विलेजर्स को बुलाया, विलेज वालों को, कि भाइयों मैंने आपके लिए चीज बनाई है, यू कम टू द बैंक ऑफ द रिवर एंड सी दिस बोट यू कैन रन विद की। तो प्रीवियसली यू वर सपोज्ड टू रन योर बोट विद ओर्स, चप्पू से चलाना पड़ता था आपको, एंड योर हेड्स गेट पेन्ड एंड यू कांट गो सो फार एंड यू आर बाउंड टू कम सून। इससे आप क्या कर पाते थे, कम फिश पकड़ पाते थे। मगर जब आप की से चलाओगे तो क्या होगा, यू कैन गो सो फार एंड यू कैन कैप्चर सो मेनी फिशेस। आप बहुत सी फिशेस ला सकते हो और आप बहुत रिच बन सकते हो और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है। दे ऑल वर नेगेटिव पर्सनालिटीज। वे सब कैसे थे, नेगेटिव पर्सनालिटीज। और स्टूडेंट्स, नेगेटिव पर्सनालिटी का मतलब मालूम आपको क्या होता है? एक्चुअली में नेगेटिव पर्सनालिटीज ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन अगर नेगेटिव है तो टोटली नेगेटिव है, ऐसा नहीं। ये हमारी थिंकिंग है कि अगर कोई पर्सन नेगेटिव है तो टोटली नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर कुछ बातें नेगेटिव होती है और कुछ बातें पॉजिटिव। When I was a student, my friend told me that yeah, let's meet one person in Indore. We were studying in Indore, and he said there is one dynamic person और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जिंदगी का। और इंग्लिश का भी कराते हैं, पर्सनैलिटी भी कराते हैं और मेन वो कंसल्टेंसी, ह्यूमन रिसोर्सेज ऐसा टॉपिक कराते हैं। तो आई सेड यार नो मैं नहीं जाऊंगा यार। तो उस समय हो सकता है 5% मेरी भी नेगेटिविटी रही हो। ही सेड यार प्लीज यार चलो यार मेरे साथ यार, एक दिन चलो। मैंने कहा नहीं यार मुझे क्या जरूरत है, मैं तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है। और ये सिर्फ मेरी थिंकिंग थी।
इट वाज ओनली माय थिंकिंग कि मुझे सब कुछ आता है. Somehow he bribed me. उसने मुझे ब्राइब किया एंड ही सेड यार रास्ते में एक छप्पन मार्केट है, वेरी फेमस मार्केट, कहता मैं वहां पे पोहे खिलाऊंगा तुम्हें. मैंने कहा चल यार, क्योंकि मेरा जो मोटो था वो कहां तक था, छप्पन खाकर पोहे खाने का. मेरा मोटो ये नहीं था कि उस व्यक्ति से मैं मिलूं, मगर मैं मजबूर था कि मुझे अगर पोहे मिले तो मैं चलता हूं. मैंने कहा हाँ चलते हैं, फिर तो चलते, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो पोहे खिलाएगा ना पक्का? वो कहता हाँ पोहे पक्का. मैंने कहा ठीक. एंड इन द वे मैंने पोहे खाए. उसके बाद मेरा कोई इंटेंशन नहीं था जाने का, फिर भी मैं उसके साथ तो बैठने था. तो हम गए, उस पर्सन से मिले. जब मैं उस पर्सन से मिला तो मैं समझ गया, क्योंकि अपने किसी से मिलते हैं 2 मिनट भी तो हम जज कर लेते हैं कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, वो कहां खड़ा है. मैं समझ गया आई एम अ पर्सन हु इज फ्रॉग इन द वेल एंड दैट पर्सन इज द फ्रॉग इन द ओशन. वो सच्ची में ओशन का फ्रॉग है और मैं कौन हूं? मैं फ्रॉग तो हूं मगर वेल का फ्रॉग. मुझे नॉलेज सिर्फ इतना पता था कि जितना मुझे दिख रहा है, और एक्चुअली में नॉलेज इतना नहीं होता कि मुझे दिख रहा है. नॉलेज बहुत वास्ट है. तो मैंने एग्री करा इस बात को और मैंने उसको ज्वाइन भी किया बाद में मेरे फ्रेंड के साथ, क्योंकि फर्स्ट डे मैं मान गया था. मैंने कहा हाँ बिल्कुल यू आर राइट यार. तो ये नेगेटिविटी, तो जो रॉबर्ट फल्टन था उसने लोगों को तो बुला लिया, मगर वो सारे कैसी सोच के व्यक्ति थे? नेगेटिव सोच के. तो जब रॉबर्ट फल्टन ने अपनी बोट को स्टार्ट करना चाहा उनको दिखाने के लिए, तो हुआ ऐसा स्टूडेंट्स कि एकदम से उससे चाबी लगी नहीं. इसका रीजन क्या था? वो लोग सब क्लैप्स करने लगे. 10,000 लोग एक साथ क्लैप करने लगे. मालूम क्या बोले? ये नहीं चलेगी, गणित ये नहीं चलेगी. अब आपके कोई फ्रेंड एक साथ सारे बोले यार तू नहीं कर सकता, नहीं, तो आप थोड़े से डिमोरलाइज नहीं होते कि यार सच्ची में यार मैं नहीं कर सकता, यार मुझे नहीं लगता कि मैं कर लूंगा. तो व्हाट हैपेंड, दे ऑल रेजिंग स्टार्टेड क्लैप्स. तो हम लोग अपने क्लैप करके देखते हैं कि कैसा माहौल हुआ होगा वहां पर. लेट्स क्लैप. ये नहीं चलेगी. सी व्हाट इज हैपनिंग. अब ऐसे वॉइस के अंदर अगर मैं इसको बोलूं ताला लगा और आप बोलो नहीं लगेगा नहीं लगेगा, जोर जोर से बजाओ, तो बताओ ये लॉक लगा लेगा क्या? इसे लॉक नहीं लगेगा. तो सेम केस जब हमारे साथ ऐसी कंडीशन हो तो हम भी नहीं कर पाएंगे. सेकंड पार्ट, जब तालियां बजाने से वो नहीं चला पाया तो नेगेटिव लोगों को और मौका मिल गया और उन्होंने और जोर से बजाई. और क्या बोले? ये नहीं चलेगी. एक बार दोबारा बजाना मगर अब की बार जोर से बजाना. ये नहीं चलेगी. अब इतनी वॉइस के अंदर अगर किसी पर्सन को कुछ काम करो तो वैसे डर जाएगा. तो उसने किसी गोल घोड़े को नहीं छोड़ा, सबको याद किया, रिकॉल किया. गुरु नानक देव जी, ठीक है, और क्राइस्ट और हमारे राम जी, हनुमान जी, सबको, किसी को नहीं छोड़ा उसने. अल्लाह अकबर. और किसी तरीके से चाबी लगा दी और चाबी लग गई और वो स्टार्ट हो गई. मगर आपको एक बात पता है, यू नो वन थिंग, कि नेगेटिव पर्सन हमेशा नेगेटिव रहेगा. वो जल्दी से पॉजिटिव जब तक खुद ना चाहेगा आप उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते. उन्होंने फिर तालियां बजाई और मालूम क्या बोले? ये नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी. चल तो गई, अब रुकेगी नहीं है. तो नेगेटिव पर्सन आर सच. अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 4 लोग थे, 2 चूहे थे, 2 लोग थे. एंड द माइस नेम वर स्निफ एंड स्करी एंड द पीपल नेम वर हैम एंड हॉ. जो हैम है वो एक पॉजिटिव पर्सन है, हॉ एक नेगेटिव पर्सन है. व्हेन हॉ एक पॉजिटिव है, हैम एक नेगेटिव है. हैपेंस व्हाट व्हेन दिस माइस लेफ्ट फॉर अ न्यू चीज, हॉ टोल्ड टू हिज फ्रेंड, यार अपने भी नए चीज की खोज में चलते हैं, लेट्स मूव, क्योंकि ये चीज बहुत जल्दी खत्म भी हो रहा है और खराब भी हो रहा है. ही डिडंट एग्री. कहता है यार मेरी लाइफ तो इसमें निकल जाएगी, इतनी जिंदगी है, इतना ही चाहिए और बहुत है. ही सेड नो नो यार अपने चलते हैं, कुछ नया करते हैं, ये करते हैं. वो कहता नहीं यार मुझे नहीं लगता. अब वो दोस्त था, वो आप में से दोस्त था. जैसे यू बोथ हैव जॉइंड पीडी क्लासेस, तो शायद आप में से किसी ने एक दूसरे को कहा होगा कि यार अपने चलते हैं. तो उसने कहा हाँ जी. आप में से पहले किसने कहा था? किसको कहा था? आपने कहा. आपने पाठक को कहा पाठक चलते हैं. पाठक नहीं यार कहाँ जाएंगे यार, इतनी दूर यार गर्मी बहुत है. तो आप पाठक को आपने कहा यार चलते हैं, तो पाठक मान गए. मगर मान लीजिए पाठक नहीं मानते, तो वही डिफरेंस आया था कि हॉर हैम. तो ये जो हैम है ये एंड तक नहीं माना, तो बताओ क्या करेगा सामने वाला? और उसको कहता भाई ठीक है तो नहीं मत मान, मैं तो जाऊंगा. एंड ही लेफ्ट इन सर्च ऑफ अ न्यू चीज. अब लास्ट में स्टोरी में ऐसा कहा गया स्टूडेंट्स कि एट द लास्ट व्हाट हैपेंड, जो हॉ था इसको स्निफर स्करी मिल गई आगे जाके और वो नया चीज खा भी रहे थे. और इसने ये जो हॉ था he joined those sniff and scurry and enjoyed the cheese. And what happened with the ham? उसको लगा कि ये चीज है, ये पर्याप्त है, मगर ये चीज खुला था तो ये खराब तो हो ही रहा था, rotten हुआ, rot हुआ. और somehow he was unable to get any other cheese. उसने वो खाया तो क्या होगा? जब वो खराब चीज खाएंगे तो क्या होगा? Sick, ill. पहले sick फिर ill, है ना? फिर क्या हुआ? Severe ill. अब severe illness के अंदर भी if you have no option, you have
bound to eat that cheese only, what you will do? You will eat that cheese only. And he finished. On this story, writer has given us first 2 points. Look in the books. There is written cheese. आप सब देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है cheese. मिल गया आपको? तो ध्यान से पढ़ो. Cheese is metaphor for what you want to have in life. Cheese क्या है students? Cheese एक metaphor है कि आपको जीवन में क्या चाहिए. तो what you want to have in life को underline कर आप नीचे लिख दो aim. फटाफट लिखिए aim. और इन 3 लाइनों में आप अपना aim लिख दीजिए. आपको मैं 5 seconds दे रहा हूँ. Write fast. Have you written? How many of you know that this light, this bulb, is giving us light because of which scientist? Bulb. You are knowing students. अगर मैं नाम लूँगा तो आप हाँ हाँ सर मुझे ध्यान था. Very good. Clap for the Ekta. Very good. Thomas Edison is the name of a person. Students. You know that he was a partially deaf. वो partially deaf था. Hardly 3 days अपनी life में school में गया था. And what the teacher said, do you know? In the teacher made a diary. In the note it was written, your son is unable to cope up with us. Please throw him out. He is a stupid boy. और उसको निकाल दिया गया. Mother आई. Mother said the teacher that my son is little partial deaf. आप इसको थोड़ा सा पास में बिठा लो. इसको सुन जाएगा. But teacher said no. We have a sitting arrangement. और थोड़ी egoist भी थी. तो मदर सेड ओके, मेरा बच्चा सिर्फ एग्जाम देने आएगा, पढ़ाऊंगी इसको मैं. और होल लाइफ ही गेट एजुकेटेड फ्रॉम हिज मदर ओनली एंड ही बिकेम ए डायनामिक साइंटिस्ट. और उसकी मदर ने उसको सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बनाया, एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आदमी बनाया, बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी बनाया. कैसे? एट द एज ऑफ 67, उस एज के अंदर मैक्सिमम हम में से ज्यादातर लोग 67 के अंदर वो एज के अंदर लोगों को देखते हैं. दे आर इन टेंपल्स, दे आर इन द पार्क्स. वो पर्सन की लैब में बैठा. Suddenly what happened? His lab got burnt. All his colleagues, junior colleagues, 20-20 साल के जो लड़के उसके साथ काम कर रहे थे, और वो खुद किसी तरीके से बाहर भाग के आए. Somehow they escaped from the fire, but everything got burned because in labs there are certain acids and all these things. तो सब कुछ जल गया. तो जो बच्चे थे उसके साथ 20-20-30 साल के, वो said, sir, everything is burned. हमारा सब कुछ जल गया, हमारी मेहनत जल रही है. वो इधर no problem dear. Strength हमेशा हाथों में होती है. वो तो weakness ऐसी जल रही है, don't problem. और within few weeks he invented phonogram. You must be knowing it's a musical instrument. He made 1200 patents in his life. एक इंसान अगर एक पेटेंट कर ले ना, टेलीफोन किसने बनाया था? वेरी गुड. एक इंसान अगर एक पेटेंट कर ले, पूरी लाइफ उसका नाम चमकता है. तो he made how many patents? 1200 patents. The one of the biggest scientists he was. So same case here. Cheese is now your aim. It's not a पनीर. अब चीज वो हिंदी वाला पनीर नहीं रहा, उस कहानी में वाला चीज नहीं रहा. अब चीज क्या बन गया? आपका एम. नेक्स्ट पॉइंट, मेज. मेज के लिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स? मेज इज द कम्युनिटी लिविंग. मेज एक पजल है. मेज का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? इट्स अ पजल. यानी जिस माहौल में हम रहते हैं हमें वहीं पर ही अपनी चीज को ढूंढना है. न्यूकमर, व्हाट्स योर नेम? अरुणा. अरुणा, which university you are studying? Maharaja Ganga Singh University ना? Do you know the world's best university? Try. World's की दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है? ऑक्सफोर्ड बोलोगे, कैम्ब्रिज बोलोगे, हार्वर्ड बोलोगे, राइट? गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बोल सकते हो क्या आप? कोई लिंक है आसपास? जितना उसका किचन होगा उतनी तो यूनिवर्सिटी होगी. और आपको पता है स्टैंडर्ड भी क्या है. बट क्या इसकी वजह से हम लोग सुसाइड कर लेंगे यार? लाइफ यार ऑक्सफोर्ड तो मिला नहीं, क्या जिंदगी है यार, नहीं जीते. ऐसा हो सकता है? हमें क्या करना होगा? हमें इसी यूनिवर्सिटी में रहकर अपने आप को स्टार बन के दिखाना होगा, राइट? तो व्हाटएवर इज गिवन टू अस वी शुड बी हैप्पी विद दैट. अदरवाइज वी वुड बी द सैडेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. अच्छी बात नहीं होगी. तो द थिंग इज, जो भी हमें मिला है, और हमेशा जो जिया रहता है वो किसको देख के जिया रहता है? अपने से नीचे वालों को. हमेशा ध्यान रखना. हाँ, प्रोग्रेस हमेशा किसको देख के करनी चाहिए? दिस इज द डिफरेंस. तो ये जो मेज है ये क्या है? भूल भुलैया है, पजल है. इन 2 पॉइंट्स में आपको लिखना है कि
how you are passing your time and where you are passing your time, that will make your future. आप अपने जीवन में अपने समय को कहां व्यतीत कर रहे हो, वो चीज निर्धारित करेगी आपके फ्यूचर को. I remember the day of a person, सुप्रीत was a student of mine. वो मुझे बोला सर मेरा ICICI बैंक का इंटरव्यू है और ऐसा कीजिए सर मुझे आप तैयारी करा दीजिए, मेरे पास 10-15 डेज है. मैंने कहा ठीक है सुप्रीत अपने तैयारी करते हैं. हमने बहुत अच्छी तैयारी करी और 10-15 डेज उसने मुझे शायद 10-15 आवर्स ही दिए थे एंड ही गॉट सिलेक्टेड. आफ्टर few hours, few months, a few weeks only, एकता come to me और एकता told सर मुझे आप तैयारी कराइए एक इंटरव्यू की, मेरा भी ICICI बैंक का है. I told सुप्रीत आप एकता से मिल लो और इनको और गाइडलाइन दे दो जो भी आपने इंटरव्यू दिया है. सुप्रीत गाइडलाइन was only one. Do you know what? उसने कहा जो सर कराए ना वो ढंग से कर लेना क्योंकि वही आने वाला है. And एकता is the best example. एकता the question which I made you, were they all attempted? वही पूछे गए आपसे, right? They asked you about your nutrition, they asked about your hobbies. और शायद एकता डर भी रही थी उस टाइम जब वो फर्स्ट डे आई थी और मैंने उसे बोला था अपनी हॉबी रीडिंग रख लो, तो ये घबरा गई थी कि सर बैंक का इंटरव्यू और रीडिंग में अपनी हॉबी रख लूं, तो मैं तो सर बहुत घबरा रही हूँ. मैंने कहा आप इसको आप एक पॉजिटिव वे में सोच के देखो कि जब आप घबरा रही हो तो 90 और लड़कियां भी तो घबरा रही होगी जो इंटरव्यू में आने वाली हैं, तो शायद वो ना रखे और आप रख लो तो आप उनसे डिफरेंस नहीं होगी. और हमेशा सक्सेस कौन पाता है? जो डिफरेंट होता है. तो आप घबराओ मत, आप कॉप अप कर लोगी. कहते सर कैसे करूंगी? मैंने कहा आप कैसे मत सोचो, आप मेरे सामने बैठी हो, आप सिर्फ वो करो जो मैं करूं. एंड शी स्ट्रगल्ड हार्ड और इनसे हॉबी का क्वेश्चन पूछा भी गया, रीडिंग का भी पूछा गया और बुक का भी पूछा गया एंड शी आंसर्ड इन अ वेल मैनर. इनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई. इनसे कौन सी बुक पूछी गई थी आपसे? अच्छा यही पूछी. और आपने राइटर का नाम पूछा उन्होंने और वो भी पूछा था आपसे कि इसका थीम क्या है, तो बहुत अच्छे से आपने हाईलाइट कर दिया. तो यू हैव द ऑप्शंस प्रोवाइडेड यू आर वेल प्रिपेयर्ड. आप ढंग से अगर प्रोफेशनल तरीके से प्रिपेयर होके जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमेशा डिफरेंट बनने की कोशिश करो. इवन विशिंग भी आपकी डिफरेंट होनी चाहिए. विशिंग में भी आपका स्माइल होनी चाहिए. आप उनको स्माइल करवा दो तो इंटरव्यू को लगेगा यार हाँ यार वाकई में पर्सन डायनेमिक है. अब स्टूडेंट्स शायद आपने मेज में समझ गए होंगे कि हमें मेज में क्या करना चाहिए. हम सब में से मैक्सिमम लोग अपने घर में रहते हैं, तो आप मेज वाली लाइन से अपना होम लिख लो. अगर कोई रूम में रहता है तो रूम भी लिख लो. अगर कोई पीडी क्लास का स्टूडेंट है तो पीडी क्लास भी लिख ले, और अगर कोई कंप्यूटर सीख रहा है तो कंप्यूटर क्लास भी लिख ले. कोई साइंस की ट्यूशन जाता है तो साइंस भी लिख सकता है, क्योंकि आपको इसमें यही भरना है कि व्हाट यू आर पासिंग योर टाइम व्हिच प्लेसेस होल डे. आप आर्मी लिख सकते हो कि मैं वहां रहता हूं भाई, पीडी भी आता हूं, तो व्हाटएवर यू वांट टू राइट, मगर आपको लिखना वही है जहां पर आप अपने समय को व्यतीत कर रहे हो. आर यू ओके? चले हम उन 8 पॉइंट्स में जिसकी वजह से बुक बहुत डायनेमिक बनी. शैल वी? So, Sandeepa, you read those 8 points. पहला point read out करो please मेरे लिए. Having cheese makes you happy. बिल्कुल, having cheese makes you happy. Students, cheese क्या है? Cheese aim है. Cheese पनीर नहीं है, उस कहानी वाला खत्म हो गया है. अब चीज क्या है? एम है. अगर आपको आपका चीज मिल जाए तो आप सब खुश हो. दीपांशु, आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में? सक्सेसफुल इंजीनियर. अगर आप एक सक्सेसफुल और डायनेमिक इंजीनियर बन जाओ एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी के अंदर, तो आप खुश हो. आप खुश, राइट? सेम केस विद आई शुड से विद एंड ज्योति एंड शिनू, आप क्या बनना चाहती हो अपनी लाइफ में? कंप्यूटर एक्सपर्ट. और अगर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बन जाओ और अच्छी जॉब ले लो तो आप खुश हो, राइट? तो हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी. कम इन द सेकंड पॉइंट. The more important your cheese is to you, the more you want to होल्ड ऑन टू इट. जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका चीज होगा उतना ज्यादा आप उसको होल्ड करके रखोगे. आया समझ में? वन ऑफ माय स्टूडेंट केम टू मी, 2008 की बात है. एक बच्चा आया, he told सर मेरा एक इंटरव्यू है. मैंने कहा श्योर. कहता सर एक बुरी न्यूज़ है एक अच्छी है, कौन सी सुनोगे? मैंने कहा यार अच्छी सुनाते पहले. कहता सर इंटरव्यू फाइनल है. मैंने कहा वेरी गुड. मैंने वो बुरी भी तो थी वो भी बता. कहता सर जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन मेरे ब्रदर की मैरिज है. तो मुझे बताइए 15th Feb 2008 was he delivering interview? Was he facing an interview? और was he dancing in front of a mayor? घोड़ी के आगे नाच रहा था. बताइए. वो इंटरव्यू दे रहा था. अगर वो उस दिन घोड़ी के आगे नाचता तो आज क्या करता? आज भी वो घोड़ियों के आगे ही नाचता होता. तो सेम केस आज वो प्रोफेशनली ऑफिसर की पोस्ट पे इसीलिए बैठा है क्योंकि he thought कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है. इट्स अ संडे, आज संडे है, मेरा प्रोफेशन है, मगर आप लोग स्टूडेंट्स हो, फिर भी
आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम छोड़कर यहाँ पर आए। Whether you are married or not, that doesn't matter. Matter little bit, but not more. But you are a human being. You have your Sunday. आपका खुद का संडे है, आपकी खुद की लाइफ है. But still you are with me to learn. मंडे से सैटरडे तक आप ऑलरेडी मेरे साथ रहते हो, मगर संडे के दिन भी आप मेरे साथ हो, बहुत कुछ छोड़ के। शायद आपके पानी की बारी होगी खेत में, शायद आपके भी आर्मी में कुछ काम हो। मैरिड वुमेन्स के ऊपर तो वैसे ही बर्डन रहती है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को 4 ऑर्डर देके रखता हूँ, ये मेरे लिए ये बना के देना है, ये बना के देना है, ये बना के देना। तो सेम केस, इवन मेरी जो यंग गर्ल्स है, इनका भी हो सकता है प्लान हो कि आज मॉल जाएंगे, मूवी जाएंगे, है ना, एंजॉय करेंगे, बट सी दे आर विद मी। तो ये पॉइंट शो करता है कि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका चीज होगा, उतना ज्यादा आप उसको होल्ड करके रखोगे, थाम के रखोगे, उसको नहीं छोड़ोगे। इस लेक्चर को आप YouTube पे भी सुन सकते हो, आप घर पे भी बैठ के सुन सकते हो, मगर आप फिर भी सामने हो। रीजन इज ओनली वन, क्योंकि जब आप YouTube पे या मूवी में किसी चीज को देखते हो तो आप इतना डेवलप नहीं हो सकते जितना आप फेस टू फेस डेवलप होते हैं। ये तो डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। बिल्कुल, अगर आप चेंज के साथ चेंज नहीं हुए तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यू विल बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब ये नहीं है सच्ची में आप गायब हो गए, पता लगा हमारी ज्योति गायब हो गई, दिखती नहीं आजकल, ज्योति आती है मगर दिखती नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है? तो एक्सटिंक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप गायब हो जाओगे। एक्सटिंक्ट का मतलब ये है कि when you are unsuccessful, people will not follow you. और ज्यादा दोस्त किसके होते हैं? सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल के, क्योंकि हर दोस्ती के पीछे एक कारण होता है। तो सेम केस हियर, whenever you are successful person, people will surround you, and when you are unsuccessful, you are alone. और आप रोड पे भी जाओगे, you will feel that people are diverting their ways because you are coming. They will say यार ये कुछ ऐसी बात करेगा, आप enjoy नहीं कर पाएंगे, छोड़ो, leave it. He is unsuccessful. So never be like this. You should be successful. Next point. जीवन में चेंज तो आना ही आना है। चेंज विल डेफिनेटली कम इन अवर लाइफ। आज आपके जो फ्रेंड्स हैं, शायद अगर मैं किसी का भी एग्जांपल दूं कि जितेंद्र यहाँ बैठा है, तो जितेंद्र का दीपांशु दोस्त है ना? आपका जो फ्रेंड है वो हो सकता है 5 साल बाद आपके ये फ्रेंड ना रहे, आपका माहौल दूसरा हो, आपका एनवायरनमेंट दूसरा हो, मगर आप खुद तो रहोगे और आपको क्या बनना है? सक्सेसफुल। तो जीवन में एक ही चीज है जो जिसको आप कभी नहीं चेंज कर सकते, वो क्या है? वो चेंज है। वो तो आना ही आना है, और चाहे आप उससे घबराओ, चाहे उससे डरो, चाहे उसको लाइक करो, चाहे डिसलाइक करो। जैसे अभी अभी स्टीव जॉब्स का हमने लेक्चर सुना था, तो स्टीव जॉब्स ने क्या कहा था कि डेथ एक रियल फैक्ट है। अगर हम उससे घबराएंगे या उसको पसंद करेंगे, इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो जरूर आएगी। तो हम लोग स्माइल करते हैं जब डेथ आता है, वर्ड आता है, और डेथ क्या, हाँ यार आनी है यार, सही है, मगर हम लोगों को पता है। तो सेम केस जीवन में चेंज भी ऐसा ही है, चेंज भी आना ही आना है, ये श्योर है। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। अपने चीज को बार बार स्मेल करो स्टूडेंट्स, कहीं ये बूढ़ा तो नहीं हो रहा, कहीं ये एज तो नहीं हो रहा। अपने चीज को क्या करो, आप बार बार स्मेल करो। अब चीज को स्मेल करने का तरीका मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स? क्या ये भी है कि फ्रिज खोला, अंदर पनीर के पड़े रहता है पनीर अपने घरों में, तो अपने पनीर उठाओ और हाँ सर ने कहा था ये हो गया काम, बताइए ऐसा है? तो कैसा है? वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? चीज को स्मेल करने का मतलब? पार्डन? उसमें क्या कमी है? दिस साइड change is love. Next. Okay. Very good. You should always remember and try to achieve that aim. मतलब change is necessary. तो change को smell करने का मतलब ये नहीं है कि हमने change को smell करके देखा है, हमने ये देखना है कि हमने जो पा लिया है वो enough है क्या। और real fact तो यही है कि अगर enough होता तो मेरे आर्मी वाले यहाँ नहीं होते। ऑलरेडी ये आर्मी में है, 40 से 50,000 रुपीज अर्न कर रही है, मगर फिर भी ये यहाँ है बिकॉज दे वांट टू अचीव अ मोर डेजिग्नेशन, दे वांट टू बी एन ऑफिसर। ये चाहते हैं हम पोस्ट भी ज्यादा लें, सैलरी भी ज्यादा लें, और डेफिनेटली दिस कैलिबर, और होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो हम लिविंग भी नहीं है। अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और ह्यूमन बीइंग है तो प्रोग्रेस इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी और आदमी दोनों क्या होते हैं? सड़ने लगते हैं।
So it is necessary also that we should get progress in our life. Next one please. You should notice when the changes begin so that you would be better prepared for the big change. छोटे छोटे चेंजेस को पकड़ो स्टूडेंट्स लाइफ में, छोटे चेंजेस को. That's the best way. Many people are coming to me, they are saying sir मुझे इंग्लिश सीखनी है, और आप मानेंगे नहीं स्टूडेंट होम से क्या क्या सीख के जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते. वो पर्सनालिटी अपनी डेवलप कर जाते हैं, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज तक डेवलप कर जाते हैं, वो इंटरव्यूज में इतने A1 बन जाते हैं जिसके लिए वो आए नहीं थे मेरे पास. उनको पता भी नहीं रहता कि वो क्या क्या चीजें मुझसे सीख गए, और बाद में लाइफ के अंदर जब वो मुझे मिलते हैं आज भी तो वो रियलाइज करते हैं कि सर हाँ सर हम सोच के तो ये आए थे कि हम ये चीज सीख लेंगे आपसे, मगर उसके बाद वाली चीजें भी हम सीख रहे हैं, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है. तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स विद मी, बट सिंस आई हैव गिवन यू टुडे सो मेनी स्टोरीज, तो मैं चाहूंगा कि आज मैं बुक तक सीमित रहूं और एग्जांपल्स में अपनी लाइफ में आपको बात दे दूं. नेक्स्ट पॉइंट प्लीज. Movement in new direction helps you find new things. मूवमेंट इन ए न्यू डायरेक्शन, यू शुड बी रेडी टू मूव इन ए न्यू डायरेक्शन. अगर हम नई डायरेक्शन में जाएंगे तभी तो नया चीज मिल सकता है, वरना नई चीज की हम उम्मीद नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट प्लीज. Imagining myself enjoying new things even before I find it leads me to it. टिकट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक. इसको इंपॉर्टेंट कर दो, टिक कर दो, क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको बहुत ही ढंग से समझाने वाला हूं. स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन आप सबसे, आप सब में से कोई जवाब दीजिए मुझे. हम सब जानते हैं कि हम सबको कंट्रोल करने वाली कोई ना कोई पावर है जो हमें कंट्रोल कर रही है, राइट? हमने उसे क्या नाम दिया? गॉड. ग्रेविटी तो मैंने वो साइंस वाली लड़की के शब्द दे दिया उज्जवल के, मगर मेरे और जो साइंस के नहीं है उनके नाम से तो मैंने उसे क्या नाम दिया? गॉड. अब गॉड को हमने बाइफरकेट कर दिया अपने बेनिफिट के लिए, है ना? ये गुरु नानक देव जी बोलते हैं, मैं हनुमान जी बोलता हूँ, है बात एक ही, मगर हम लोगों ने क्या किया? बाइफरकेट कर लिया अपने बेनिफिट के लिए. किस भगवान को मानते हो आप? माता जी को. वेरी गुड. देखो हम तीन हो गए. अगर मैं उधर जाऊंगा तो शायद कुछ नए गॉड निकलेंगे, है ना? कोई शिव जी भगवान आएंगे, कुछ आएंगे, अलग अलग गॉड गॉडेस आएंगे, राइट? अब जब इतने गॉड गॉडेस आ गए हैं, फिर भी हम सबको एक बात पता है, दैट गॉड इज ओनली वन. ये बात भी हमको पता है कि भगवान है तो एक. अब ये जो गॉड है, साइंस इसको कहती है ये एक यूनिवर्स है. इस यूनिवर्स को आप अलादीन के चिराग की तरह यूज कीजिए. अलादीन के चिराग में क्या होता था? कुछ आइडिया? जिन होता था, और जिन आपके लिए काम करता था, है ना आपको? तो बताइए अलादीन ने कितनी इच्छाएं रखी थी? 3. आज अगर मैं इनको ये दे दूं ना किरण गोटिया को कि किरण ये वो है दीपक, और ये ले लो आप, और गजल और किरण आप लोग ले लो और जाओ इच्छाएं कर लो, तो आपको नहीं पता ये क्या करने वाली है. ये 10 लाख इच्छाएं रख देगी उसके सामने, ये कर वो कर, ये कर वो कर, ये कर वो कर, ये कर वो कर, और वो बेचारा जिन कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा, कभी इधर दौड़ेगा, और इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, कभी नहीं पूरी हो सकती. और ये ऐसा नहीं कि किरण के साथ है, ये चीज अगर मैं किसी को भी दूंगा, अगर मैं बोलूं कि भी दिशा को मैं काम दे रहा हूं, दिशा ये दीपक पकड़ना प्लीज, 2-4 इच्छाएं मांग लेना, पर सर 2-4 सर मैं मांग लूंगी अपने हिसाब से, और वो जिन पता लगा बेचारा थक गया, पतला सा हो गया बेचारा काम नहीं करके, ठीक है? तो सेम केस हियर कि अब वो इच्छाएं बढ़ गई है. ये भी एग्री करते हो? साइंस इज सेइंग, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसके अंदर हम अंदर आ जाते हैं. देयर इज वन वर्ड दैट नेम इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आप लोगों ने सुना ये वर्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन? वेरी गुड. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि ये जो यूनिवर्स है, इसको आप हमेशा कैसा मानो? इसको आप अलादीन के चिराग की तरह मानो. अगर आप इसको यूज करोगे अपने तरीके से, आप बिल्कुल ऐसा वैसा बन सकते हो, इससे ज्यादा डायनामिक बन सकते हो जो आप सोच रहे हो. और आपको कभी भी अपने इस चिराग को ये नहीं कहना कि ये मुझसे काम कैसे करवाएगा, कैसे नहीं सोचना, सिर्फ करना बोलना है आपको, और इसकी फीलिंग लेनी है आपको. इमेजिन करना है कि मैंने वो चीज पा ली है, क्योंकि देयर इज रीजन अगेन बिहाइंड दैट. द रीजन इज ओनली वन, दैट दिस यूनिवर्स ओनली नोज वन वर्ड. इसको सिर्फ एक ही शब्द आता है जिसको हम हिंदी में बहुत अच्छे से समझाते हैं. इसको बोलना आता है आप सबको, तथास्तु. बोल के देखो. हाँ. अब ये तथास्तु वर्ड हमें कैसे अफेक्ट करता है मैं बताता हूं आपको. जब मेरे पास एक गर्ल आई और मुझे कहती सर मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ पीडी में, तो प्लीज आप मुझे ना मेरी वीकनेस बता दो. तो मैंने कहा भाई मैं फर्स्ट डे वीकनेस नहीं बताता, उससे मेरी गर्ल दौड़ जाएगी, तो मैं चाहता हूँ 2 दिन तुम आ जाओ, मैं तुमसे प्यार से बातें करूंगा, उसके बाद तुम्हें खींचना कितना है मैं जानता हूँ, और मैं अपने आप तुम्हें सुधार दूंगा, बढ़िया बना दूंगा. कहते नहीं सर मुझे आज ही बता दो.
मैंने कहा पहले दिन अगर मैं वीकनेस बताऊं तो क्या होगा, तुम पूरा मान जाओगी और तुम पीडी ज्वाइन नहीं करोगे और इससे क्या होगा, मुझे लॉस होगा। तो मैं कैसे तुम्हें तुम्हारी वीकनेस बता दूं? तुम 3-4 दिन अपने बारे में मेरे से अच्छा सुनो, उसके बाद मैं इतना बुरा सुनाऊंगा कि तुम याद रखोगे कि हाँ बुरा है मुझे और ये बुराइयां हैं, मान जाओगे तुम। नहीं सर अभी बता दो। मैंने कहा चल ठीक है, तुम ज्यादा ही पूछ रहे हो, तुम इम्पेशेंट हो। कहती सर कहाँ हूँ सर? मैंने कहा वो देखो अभी भी तुमने रियलाइज करवाया अपने आप को कि मैं इम्पेशेंट हूँ। कहती हाँ सर इम्पेशेंट तो मैं, सही है सर बात सही है। नेक्स्ट डे शी जॉइन और करीबन 10-15 डेज के बाद वही बस कहानी आ गई, मेरे दिन आ गए फिर सुनाने के उसको। वीडियो बैठे थी, आसपास बच्चे बैठे थे और मैं उसको तैयार कर रहा था कि तुम्हें कैसा बनना है, कितना प्रोफेशनल तुम बन सकते हो, कितना डायनेमिक अभी तुम्हें बनना बाकी है। मैंने कहा तुम्हें ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए, ये करिए, वो करिए, ये करिए। कहते सर सही बात है सर, मुझ में ये भी नहीं है, मुझ में ये भी नहीं है, फ्लुएंसी भी नहीं है, ये भी नहीं है, मगर मेरी जॉब पक्की है सर, वो मुझे जरूर मिलेगी। मैंने कहा बस ये बात है ना हमेशा बोलना और ये बात 24 घंटे अपने मन में रखना कि ये चीज मुझे जरूर मिलेगी, वो चीज जरूर तुम्हारे तक पहुंचेगी। ये श्योर है बात, ये चीज मैंने भी अप्लाई करी है, इवन आपने भी करी है। इवन जब हम सुबह उठते हैं तो आप कभी भी नोटिस करना, whenever we are waking up early in the morning, we find that negative vibrations enters और दिन भर की जो टेंशन होगी, जैसे शाम की टेंशन हो गई 4 बजे की, वो हमें अभी अटैक कर देगी उठते ही। यार वो 4 बजे वो दिक्कत होने वाली है, वो 3 बजे वो अरे मेरा तो मोबाइल खराब पड़ा है, मेरा चार्जर लाने वाला है, आपको कुछ भी अजीब सी बातें याद आएगी, आप रिकॉल करना। तो ऐसा मत होने दिया करो। whenever you are getting up early in the morning, you should say today is my lucky day। क्या बोलने वाले हो आप लोग? हाँ आप लोग ये बोला करो, टुडे इज माय लकी डे। जैसे ही उठो सबसे पहले यार आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, बस ये बोलना है आपको, ठीक है? आप अपने गॉड वर्ड्स को याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आजकल मुझे नहीं लगता क्योंकि आप व्हाट्सएप और फेसबुक पे रहते हो, तो ज्यादा अच्छा है कि आप लोग ये लाइन जरूर बोला करो कि टुडे इज माय लकी डे। बस ये लाइन आपको एड ऑन करनी है अपनी लाइफ के लिए। अब इतने से काम नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, इतने से काम नहीं चलने वाला। द रीजन इज इन आवर डेली लाइफ हैपेंस व्हाट, गरिमा से उज्जवल बोलती है कि यार आज पार्टी दे दे। उज्जवल कहती है कहाँ यार भिखारी, यार 1 रुपया नहीं है जेब में यार। ऊपर से क्या बोल रहा है याद है आपको? वो ऊपर से कौन सा शब्द बोल रहा है? तथास्तु। और वो गरिमा को बोल रहा है और गरिमा के शब्द क्या आ रहे हैं? यार भिखारी 1 रुपया नहीं है मेरी जेब में। वो कह रहा है तथास्तु, बहुत अच्छी बात है, तेरी जेब में 1 रुपया ना रहे। तो बताओ गरिमा के लिए वो सही है कि गलत है? वो गरिमा के लिए गलत है। तो आपको नेगेटिविटी सुननी भी नहीं है और बोलनी भी नहीं है। और स्टूडेंट्स इन एवरी मूवी द राइटर इज गिविंग अस सो मेनी गुड थिंग्स। जैसे आपने शाहरुख खान की वो मूवी देखी नहीं, इन दैट ही सेज कि अगर आप किसी चीज को पसंद करो तो सारी कायनात है ना उसको मिलाने के लिए लग जाती है। हाँ तो आप सब जानते हैं डायलॉग, बस शाही कर रहे हैं मगर समझ नहीं आप। इन दैट मूवी अनदर मूवी वाज गुरु। आपने से किसने गुरु मूवी देखी थी स्टूडेंट्स? वेरी गुड। अगर आपने नोटिस किया था तो उसके अंदर एक सीन था, राइटर देखो डायरेक्टर कितनी अच्छी बातें सिखाते हैं, हम नोटिस नहीं करते। उसके अंदर क्या होता है, देयर वाज रेनफॉल गोइंग ऑन एंड दिस हीरो हु इज अभिषेक बच्चन, ये बालकनी में खड़ा होता है तो नीचे से एक पर्सन बोलता है वो काम नहीं हुआ। तो कहता है क्या? कहता नहीं हुआ। कहता क्या? कहता ये काम नहीं हुआ। कहता सुनता क्यों नहीं तुम्हें? नहीं हुआ। कहता मुझे ना नहीं सुनता, मेरे कानों पर ना वर्ड सुनता ही नहीं है। तो ऐसे बन जाओ। मगर इसमें ऐसे नहीं कि आप, अब ये गर्ल कह रही थी मेरे से पिटाई होगी मेरी। मैंने कहा क्या हो गया? मैं टीवी देख रही थी, मम्मी कहती नहीं देखना, कहती मेरे को ना नहीं सुनता मम्मी ने एक लगाया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मगर आपको नेगेटिव चीजों के लिए ना नहीं होना चाहिए। भाई अगर आप कोई कहता है आपको कि यार तू शायद ही कर पाए, क्या यार तू शायद क्या वो क्या यार तेरा हो जाएगा यार, ठीक है? तो आपको अपने आप को बोलना भी नहीं है, इवन सुनना भी नहीं है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये इफेक्ट करती है चीजें आपकी लाइफ को, इतना इफेक्टिव रहती है। तो आपको ऐसा करना है। उसके बाद में आई गिव यू सम मिरर एक्सरसाइजेस, मैं आपको मिरर एक्सरसाइज दूंगा, वो मिरर एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस किया करो, तो दैट विल मेक यू मोर पॉजिटिव इन लाइफ। और ये जो तथास्तु है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये रियल में वर्क करता है स्टूडेंट्स। मेरी वाइफ ने एक दिन मुझे कमेंट कर दिया कि यार आपको कार आनी चाहिए, करीबन 2008 की या 9 की बात होगी, फिर आपको कार आनी चाहिए। मैंने कहा हाँ यार मेरे को कार नहीं चलानी आती, मेरे को तो बाइक ही आती है। तो वो कहती आनी चाहिए आपको। और उसके बाद वो सो गई। और आप बताइए उसके बाद मुझे नींद आई? नींद है ना। नेक्स्ट डे वो मतलब वो मायके चली गई, तो बताइए मेरी आदत क्या होगी? मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा यार मेरी वाइफ एक बात कह गई और बहुत बुरा लग रहा मुझे। मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे शायद। मैंने कहा चलो ऐसा करो, मैंने कटिंग काटी और यहाँ पर अभी कार की कटिंग।
जब मैंने कार की मीटिंग थी, मैंने 2 लेक्चर दिए होंगे 8 से लेकर 10 बजे तक। मेरे दिमाग की घंटियां बजने लगी क्योंकि वो तथास तो बोलना शुरू किया उसने, क्योंकि मैंने 10 बार उस कार को देख लिया था। तो मेरे माइंड ने कहा कि कार कैसे चलाई जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कार भी ले नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? कोई बात, मगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तो काम शुरू कर दिया। तो मैंने फोन किया यहाँ के कार चलाने वाले को, कोई जोशी करके कोई ऐसे सिखाता है यहाँ पर। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा हेलो जोशी। कहता हाँ जी। तो वो यंग सा लड़का ही था अनुमान करके। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन, मैंने कहा मेरे को कार सिखानी है। कहता अगले महीने सिखाता हूँ। मैंने कहा शाबाश, अगले महीने। मैंने कहा मेरी भाई क्या गई है, मेरे को अभी सीखनी है। कहता भैया टाइम ही नहीं है, अभी 6 बजे लेडी को सिखाता हूँ, 7 बजे एक जेंटलमैन है, 8:30 बजे ये है वो है, आप बाद में सीख लो। मैंने कहा बाद में मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो सुबह बोल। कहता सर 6 बजे मैं उठता हूँ, ये है वो है। मैंने कहा यार 1 घंटा पहले उठ जा। कहता नहीं भैया पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा सुन बड़े ध्यान से, तू ब्राह्मण है और मैं भी ब्राह्मण, इतने रिलेशन निकाल लूंगा कि तू मुझे फ्री में सिखाएगा और रोते होते सिखाएगा और बहुत दुखी होकर सिखाएगा और एक पैसा भी दूंगा तेरे को और इतने रिलेशन निकाल लूंगा तेरे परिवार के साथ। कहता फिर? मैंने कहा फिर क्या, तू मेरे को फ्री में सिखाएगा, तुझे लॉस होगा। कहता उसका कोई ऑप्शन? मैंने ऑप्शन है, तू मुझे भी सिखा, मैं तुझे कोई पैसे नहीं। कहता सच्ची? मैंने कहा हाँ आगे एडवांस ले जा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, तू तेरे पैसे पकड़ मगर मेरे को पैसे दे। कहता मैं सिखा तो दूं भैया, मैं उठूं कैसे, काम कैसे करूं? मैंने कहा कितने उठता? कहता मैं पहले ही 5 बजे उठता हूं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ऐसा करो तुम 4 बजे उठो। कहता हाँ ले यार मेरी जिंदगी खराब करोगे आप। मैंने कहा तो उठ तो सही। कहता मैं नहीं उठ पाऊंगा। मैंने कहा मैं उठाऊंगा क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। कहता ठीक है, अगर आप उठा दोगे मैं आ जाऊंगा और पेमेंट। मैंने कहा तू आ और ले, कोई दिक्कत नहीं। कहता ठीक। तो उसने मुझे, मैंने उसको फोन किया कि मुझे तो नींद कहाँ आ रही थी। मैंने उसको फोन किया, उठ जा भाई। कहता सच्ची आना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल आना पड़ेगा। तो वो आ गया किसी तरीके से, और वो आके जब मेरे पास आया तो मैंने हट जा, मुझे कार आती है, बस मैं सीख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने वीडियो गेम खेले भी थे, मैंने कहा शायद वैसे ही चलानी होगी। तो मैंने उस कार को स्प्रिंग को लिया और यूं किया और रेस दे दी। एकदम झटका लगा, शुक्र है उधर ब्रेक थे उसके बाद उसने ब्रेक कर और किसी तरीके से गाड़ी को रोक लिया। कहता भैया ऐसे कार लिया है कि महीना लगेगा, आप हटो साइड में। मैंने कहा यार मुझे लग रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम नहीं किया। अब इतना जल्दी नहीं करता, बिल्कुल नहीं कर सकता इतनी जल्दी। इतनी जल्दी अगर करता तो गजल अचानक सोचो हाथी आ जाए मेरे तो कमरे में, और सच्ची हाथी आगे पोटी कर ले तो पोटी भी नहीं उठाई जाएगी गजल, वो इतनी मोटा, ये क्या कर दिया। तो सी 1 मिनट में अगर हमारी सारी चीजें सही हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हो सकता है इस समय आप पता नहीं क्या क्या बातें सोच रहे हो और ऐसी बातें अगर होने लगी तो हो गया काम, फिर धरती में तो वो धीरे धीरे काम करती है। तो मैंने सोचा मैं कर लूंगा क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, मगर ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे मैंने उसको बोला कि यार तूने मुझे जितना सिखाया ना, मैंने थोड़ा सा उससे ज्यादा सीखा है, मैं इसको चला के देखता हूँ। वो कहता क्या कैसे सीखा आपने, आपके पास कार है? मैंने कहा यार मेरे पास तो कार नहीं है। कहता फिर आपने कैसे सीखा? मैंने कहा यार मैंने ना नींद में सीखा। कहता ऐसे कैसे होता है? मैंने कहा हाँ तूने मेरे को बताया था फर्स्ट गियर देना है, मैंने रेस दी थी, मैंने ब्रेक मारा था नींद में बैठ ऐसे सोए सोए और मैंने गियर दिया था। फसल गया हाँ हाँ भैया ऐसा होता है क्या? मैंने कहा तू कार तो ले। मैंने थोड़ी सी चलाई, 3rd डे मैंने अच्छी चलाई और वो जो अट्रैक्शन था वो तो चल ही रहा था। 3rd डे में एक मेरे डॉक्टर के पास गया, मेरी नॉन थी मैडम। मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब की कार है। तो वो कहती लियो भैया आप ले लो, इसको यूज करो आराम से और 1-2 महीने बाद है ना आराम से इसको आप चलाओ, उसके बाद आप ले लेना, अभी मत लेना। मैंने कहा ठीक है और मैं उस कार को ले आया और इसी तरीके से मैं चला के ले आया। 3rd डे की बात है शायद, वेडनेसडे। थर्सडे को उसने मुझे फिर कार सिखाई मेरी कार से। उसने कहा भैया ऐसा है, इसको बाजार मत ले आना। अब आपको कोई कह दे लड़ाई हो रही है, भैया ईंट मत उठाना, ईंट मत उठाना, तो आप सबसे ईंट उठोगे, ईंट का है याद दिला दिया ना। तो उसने कहा इसको बाजार मत ले गया। हाँ यार बढ़िया गया, तुमने मुझे याद दिलाया और मैं उसको कहाँ ले गया, बाजार ले गया। तो मुझे लगा मैं चला लूंगा, ठीक है। मैंने कहा मुझे आ गई है मैं चला लूंगा। कहता भैया ठीक है फिर बेस्ट विशेस। मैंने कहा ठीक। उसने मुझे रिवर्स करनी बाद में थोड़ा सा सिखाया था दोबारा, मगर मेरे को आ गई। थर्सडे को मेरी वाइफ आई, शी वाज इन द बस ओनली, और वो उतरने लगी और मैं कार लेके उसके सामने खड़ा था। शी गॉट शॉक्ड। कहता ये क्या है? वो कहती ये क्या है? मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, विश्वास करोगी? कहती बिल्कुल करोगी और ये बिल्कुल सच है बात। तो इतना इफेक्ट करता है आपकी लाइफ पर, आप करके देखना एक बार किसी भी चीज को। इवन मेरे 9th क्लास के एक बच्चे ने मुझे एक आइडिया दिया था, व्हेन आई वाज द ईयर 2012। मैंने अपने एक बच्चे को बोला, मैंने कहा बच्चों मुझे गाइड करो यार। तो कहते क्या हुआ सर? मैंने कहा मैं एक बुक लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा था शायद ये वाली स्पोकन इंग्लिश की। तो मैं ये बुक जब लिख रहा था, अब मेरी जो नई बुक आ रही है वो आ रही है ग्रामर पे, इंग्लिश ग्रामर, वो भी बेस्ट बुक होगी मगर थोड़ा टाइम लेगी। तो मैंने कहा यार मेहनत से ना लिखी नहीं जा रही आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, मैटर बहुत बड़ा है, इकट्ठा नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा लिखने का। तो एक 9th क्लास के बच्चे ने मुझे आइडिया दिया और कितना अच्छा आइडिया देखो। ही टोल्ड मी सर यू डू वन थिंग, यू पेस्ट वन पिक्चर ऑफ इट्स कवर पेज। सबसे पहले आप एक कवर पेज बनवा लो इसका एडवांस में,
and you paste it in your room. हालांकि मेरी वाइफ ने मुझे रूम में तो नहीं लगाने दिया, मुझे बुरा लगेगा, तो मैंने अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लगा लिया। और जब भी मैं लैपटॉप ऑन करता तो सबसे पहले मुझे क्या मिलता, मुझे वो चीज मिलती। और मैंने जब उसको देखा धीरे धीरे क्या हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने वर्क करना शुरू किया और एंड इट गिव्स मी बेस्ट रिजल्ट्स आल्सो। नेक्स्ट वन प्लीज। It is safer to search in the maze than remain in a cheeseless situation. सबसे बढ़िया तरीका क्या है स्टूडेंट्स? सबसे बढ़िया तरीका ये किया है, भूल भुलैये में निकल पड़ो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन चीजलेस सिचुएशन। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीजलेस सिचुएशन? कोई मुझे बता सकता है? चीजलेस सिचुएशन कौन सी हो सकती है सबसे बड़ी दुनिया की? चीजलेस सिचुएशन है हमारा घर, जहां पे सारी फैसिलिटी। आप अभी घर पे जाओगे, आप राइट स्विच ऑन करोगे, आपका एसी ऑन, आप इधर स्विच ऑन करोगे एलईडी ऑन, आप आवाज दोगे, आपकी मदर या सिस्टर पानी वगैरह कुछ भी ले आएगी, मगर आपको आपका चीज मिल सकता है वहां पर? नहीं मिल सकता। तो सबसे बड़ी चीजलेस सिचुएशन कौन सी है? जब हम घर पे बैठे रहते हैं। तो इट इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट वन प्लीज। Noticing small changes early helps you adapt to the bigger changes that are to come. छोटे चेंजेस को पकड़ो स्टूडेंट्स लाइफ में, छोटे छोटे चेंजेस को। ये नहीं होना चाहिए कि लाइफ के ऐसे मोड के अंदर हम खड़े हों जहां पर हम ये सोचें यार अब मैं क्या करूं। नहीं, आप पहले से एडवांस रखो कि मैंने ये पा लिया है, मैं बहुत खुश हूं, मैं क्या कुछ और कर सकता हूं क्या लाइफ के अंदर, और आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट वन प्लीज। The fastest way to change is to laugh at your Own folly then you can let go and क्विकली मूव ऑन। सबसे बढ़िया तरीका क्या है चेंज होने का? अपनी गलती पे हंस पड़ो और आगे बढ़ चलो। दैट्स द बेस्ट वे। स्टूडेंट, जस्ट बिलो दिस नोट्स you are looking here, there are the addresses of our YouTube, Google's, right? So if you want to see these lectures and you want to go with new dynamic things, you can look up on internet with these sites and all these things. So thank you very much. My best wishes are with you. Okay. We will have a group chat, then we will release. Thank you.